Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up the next set of first 40 questions from 2017 CSAT paper. So first we Mansi, have you're few not audible. passages. Mansi, Hanji Divya, am I audible now? yes, Mansi. ठीक, okay. So we are starting with the first 40 questions from 2017 CSAT paper. So according to passage 1, we have to identify the what does the passage imply. So here, according to me, it should be the environmental issues contribute to resource stress and the political conflicts. Option C. Fine. Then on the basis of passage 2, again we have to identify the keynote. So I think it should be we should always remain broad-minded. Option A. Okay, this is more direct then. Yes, Mansi. Then passage 3, crucial message. So climate change poses a threat to the survival of polar bears. Option D. Okay. Moving to passage 4, so most crucial message. So people have to perceive toilet use and pit emptying is clean and not polluting. Option B. Fine. Then we have passage number 5. So most crucial inference from it. Option B, the growth driven by GDP only is neither desirable nor sustainable. Option B. Okay. We have one more passage. Passage 6, so most rational inference. So land reforms they are required in India to make optimum use of its vast labor force productively. Option B. Then question number 7, the main idea of the passage is essential for human beings to work. Option A. Then we have a passage number 8. So the author suggests that habits make it easier for us to live. Option C. Fine. Now here we have this one single statement. So on the basis of it, what statement is true amongst these options? So there is at least one supporter of party Y who knew some supporters of party X as a friend. Option B. ठीक है. इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग बट अगर आप इस सेंटेंस को 2-3 बार रीड करोगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है. इसका ये रिवर्स है, ऑप्शन बी जो है. Then question 10 with reference to again the same information the sentence. So not correct पूछा है, not correct 2 और 3 not correct है. Option C. सी बोल रहा है मतलब 2 करेक्ट है. Some supporters of party X who opposed Z's campaign strategy knew Z. बट ये कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो Z को जानते हैं they will support. Who knew Z and supported his campaign strategy agreed for मतलब they in a way did not agreed for alliance with party Y. तो ये मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने ऑप्शन बी ही लगाया था. आंसर तो मैं सी. ओके चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. अब यहाँ पे बोला है कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे है, बाकी ऑल संडेज आर आल्सो हॉलीडे. तो व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ. तो मैंने इसको 30 डेज से भी कैलकुलेट किया, 31 डेज से भी. तो मिनिमम पूछा है. सो आई बिलीव 23 होना चाहिए क्योंकि 7 हॉलीडेज आ जाएगी. ऑप्शन बी. फरवरी में 28 होते हैं. मैंने 28 से किया था. नहीं, मिनिमम. हाँ वो भी मैंने किया था पर उसमें आप फिर कौन से डे से स्टार्ट कर रहे हो मंथ की डेट. अगर फेब भी हम ले रहे हैं 28 डेज का, मैंने तो तो हमें तो फर्स्ट. ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज कितनी आएंगी, तभी तो ये मिनिमम और कम होगा. मतलब आप कह रहे हो ना 8 हॉलीडेज हैं. नहीं अच्छा ठीक है 28 डेज है ना वो तो, 6 है ना. लेकिन 8 कैसे होंगे? हाँ 6 होंगे ना. 28 डेज है. ठीक है अच्छा. इट विल बी 22 क्योंकि यहाँ पे हम 28 डेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हॉलीडेज अगर 6 भी होंगी तो भी 22 आएगा ये. हाँ. ठीक है. क्वेश्चन 12. तो पॉलिसी है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी से माइग्रेट हो रही है एवरी ईयर.
एंड हमें पूछा है आफ्टर 6th ईयर, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया एंड ये 6 टाइम्स है, लाइक सपोज ये 100% है, वन जो है पॉपुलेशन का 100%, अब इससे 1/3 हम माइनस करते हैं क्योंकि माइग्रेट हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विद 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ दिस वन टोटल पार्ट, बिकॉज 1/3 माइग्रेट कर गए। अब ये टोटल हमारे पास कितने नंबर बचे, 2/3 बचा है 2nd ईयर के लिए। अब 2/3 का जो है 1/3 विल माइग्रेट, सो 2/3 का 1/3 विल बी 2/9, एंड इसमें से फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो विल बी लेफ्ट विद 4/9 राइट्स। तो आप इसको ऐसे फॉलो करते जाओगे, बट इसमें पूछा है आफ्टर 6th ईयर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 34/729 होना चाहिए था, बट यहाँ पे फिगर ही 32 है, तो दैट इज वाई आई वेंट विद बी, जो 5th ईयर का है वैसे वैल्यू 32/243। इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है दिव्या? ऑप्शन डी। डी करेक्ट है, डी। ये बोल रहे हो 64/729, यस। पर ये आफ्टर 6th ईयर बोल रहे हैं ना, तो सिक्स तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6th ईयर माइग्रेट करने के बाद इतना ही तो बचा। मेरे को नहीं पता, मेरा सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ये फिर मेरे को लग रहा है एक और ईयर के लिए हम सॉल्व करेंगे, एक तो और ये ठीक है, इसको हाँ चेक कर लेंगे, हाँ। एक और ईयर के लिए सॉल्व करके वी गेट दिस वैल्यू। देन क्वेश्चन 13 4 टेस्ट है, इसमें पूछा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे किए जाएंगे, बट सेम ऑर्डर नहीं है जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो फिजिक्स टेस्ट जो है दैट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, तो ये जो टेस्ट है ये हो रहा है बायोलॉजी के बाद, बट इस टेस्ट से पहले होता है फिजिक्स का टेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो वी कैन राइट दिस इन दिस मैनर कि फिजिक्स का टेस्ट जो होगा वो, जो हमें बोला कि एक और टेस्ट होता है उससे पहले होगा, बट ये वाला जो टेस्ट है ये बायोलॉजी के बाद है, तो इसका मतलब फिजिक्स वाला टेस्ट दोनों के बीच में हो रहा है। केमिस्ट्री का दे रखा है इट इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, तो दो हो गए तो तीसरा मतलब केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, तो मेरे हिसाब से लास्ट टेस्ट जो है मैथ्स होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्योंकि मैथ्स ही बचा एक सब्जेक्ट और हमें ये सीक्वेंस इंश्योर करना है कि यहाँ पे ये फॉलो किया जाएगा। तो अगर पहले, क्योंकि केमिस्ट्री की पोजीशन हो गई है फिक्स, तो बायो और फिजिक्स होगा, फिर यहाँ पे दो खाली है और एक बचा, तो ये जो टेस्ट है ये मैथ्स वाला है। 14th में सम ऑफ इनकम हमें दे रखी है, ये हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। अब इसमें हाईएस्ट इनकम पूछा है, तो मतलब ए की इनकम जो है बी और डी की कंबाइन करके हाफ है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें सी की भी सेम ही मिलेगी जो ए की आएगी इनकम। अब हमें पूछा है मैक्सिमम, तो आई बिलीव इस, अब ये जो हाफ और हाफ वाली ये दो इक्वेशन हमें मिली है, इसको हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। हम इसमें हाफ बी डी कैंसिल हो गया, तो बी इज ग्रेटर देन डी, मेरे सबसे मैक्सिमम बी की होनी चाहिए। ऑप्शन बी। देन 15th, तो यहाँ पे है गुड वॉइस इज नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। दो कंक्लूजन है, तो नेचुरल गिफ्ट्स दे नीड नर्चरिंग एंड केयर, तो ये वैलिड है। दूसरा बोल रहा है इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, तो इसका ऑपोजिट है, बट आई डोंट थिंक ये होना चाहिए आंसर में डायरेक्ट इतना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है, सो आई वेंट विद ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन ए। ठीक है, देन 16th में तीन पिलर्स हैं XYZ, तीन स्पाइडर्स हैं ABC, बता रखा है जैसे X जो स्पाइडर है वो एक मिनट, ए स्पाइडर जो है X पिलर पे क्लाइम करेगी, 6 सेंटीमीटर ऊपर करती है बट वो स्लिप हो जाती है 1 सेंटीमीटर, और ऐसे ही तीनों कंडीशंस हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हमने ये तीन पिलर्स ड्रॉ कर लिए XYZ, तीन स्पाइडर्स हैं और उनको 40 चांस दिया जाता है, तो गिवन है इंफॉर्मेशन की 40 चांसेस में वो टॉप पूरा डिस्टेंस जो है इसको क्लाइम कर लेते हैं। हमसे पूछा है सो इसमें जो हाइट है उसकी लोवेस्ट हाइटेड पिलर कौन सा है, तो हम पहले 39th चांस तक देखेंगे कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, क्योंकि जो लास्ट जंप वो करेंगे वो हमेशा ये वाला डिस्टेंस होगा जो भी पहला दे रखा है विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि उतना ही बचेगा, क्योंकि पहला जंप जो होता है, जैसे अगर हम एक्स लेते हैं तो एक्स विल क्लाइम 6 पहले ऊपर, फिर वो 1 सेंटीमीटर स्लाइड होगा। अब 34 में जब आप यहाँ ऑलरेडी पहुंच गए हो, 6 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो आप सिर्फ 6 सेंटीमीटर का एक जंप लोगे, तो इसलिए यहाँ पे बाद में हमने जो लास्ट स्टेप है +6, इसमें जैसे 7 सेंटीमीटर क्लाइम करते हैं ये 6.5 करता है, तो दैट इज वाई हमने 39th तक पहले कैलकुलेट किया, तो इसके लिए 39, और ये इफेक्टिव है,
ऊपर 6 गया, नीचे -1 सेंटीमीटर आया, तो इफेक्टिव वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्लाइम कर पाया। तो 5 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 195 प्लस 6, तो ये 201 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। तो शॉर्टेस्ट पूछा है तो 163 सेंटीमीटर आ रहा है, हमसे एग्जैक्ट हाइट ही पूछी है। ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन 17, तो राइट्स के ऊपर है। अब इसमें पूछा है कि व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस, तो राइट्स एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड होना चाहिए। ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ 15 स्टूडेंट्स है जो फेल हो गए क्लास ऑफ 52 में से, तो वी आर लेफ्ट विद 37 स्टूडेंट्स नाउ। अब मेरिट लिस्ट के बेसिस पे उनको पोजीशन किया जाता है, रैंक किया जाता है। उसमें से रमेश जो है 22nd रैंक है फ्रॉम टॉप, तो फ्रॉम टॉप 22nd रैंक, 22nd पोजीशन पे है। इसके बाद 37 तक आप मतलब टोटल जितने बचे जो मेरिट लिस्ट में है स्टूडेंट्स, तो हमें रिवर्स में देखना है कि ये पोजीशन कितनी आएगी। तो रिवर्स में यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है, तो इट वुड बी 16th पोजीशन। ऑप्शन सी। अब यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दे रखा है ए प्लस बी का मतलब होता है ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी इज ए इज वाइफ ऑफ बी। तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, पी प्लस आर माइनस क्यू का हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं। तो मतलब पी प्लस आर क्या होगा, पी इज सन ऑफ आर, आर माइनस क्यू हम कैसे लिखेंगे, आर इज वाइफ ऑफ क्यू। तो मतलब आर वाइफ है, क्यू हस्बैंड है, और अगर पी आर का बेटा है और आर मतलब मदर है, तो क्यू मतलब फादर हुए पी के, तो क्यू इज द फादर ऑफ पी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सी। ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे गोपाल बॉट ए सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब 10% प्रॉफिट तो सेल करेगा, बट हमने यहाँ सपोज कर लिया, कोई भी प्राइस आप सपोज कर सकते हो। तो सपोज जो कॉस्ट प्राइस है फोन का ₹100 है, जब गोपाल ने उसको बाय किया। अब गोपाल आगे सेल कर रहा है उसको 10% प्रॉफिट पे राम को, तो मतलब 10% ऑफ 100 विल बी 10, 10 वुड बी द प्रॉफिट, तो उसको सेल करेगा ₹110 पे। अब फिर से राम जो है उसको सेल करेगा गोपाल को वापस 10% लॉस पे। तो 10% अब हमें 110 का कैलकुलेट करना है, तो 10% इसका होता है 11। अब इसमें से आप 110 में से 11 माइनस करोगे, तो मतलब 99 रुपीज पे वापस सेल कर रहा है गोपाल को। तो गोपाल के लिए हमें बताना है कि उसको नेट नेट में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब गोपाल ने उसको खरीदा था 100 में, बट 99 में अब उसको वापस वो खरीद रहा है, तो उसके लिए लॉस हो गया है। मतलब उसने उसको आगे 110 पे सेल किया था, तो ये 1% नेट में लॉस होगा। नहीं, आई थिंक गेन होगा ये तो। गेन होगा। गेन होगा, हाँ सॉरी, गेन होगा, क्योंकि उसने 100 में खरीदा था, अब वो 99 में खरीद रहा है, तो ये गेन होगा। सॉरी, ये मैंने जल्दबाजी में मार दिया। देन पैसेज है, पैसेज 1, तो यहाँ पे challenge the author of the above passage throws to the public is to achieve hard work, brotherhood and national unity। ऑप्शन डी। ठीक है, पैसेज 2, सो general will is best described as collective good as distinct from the private wills of the individuals। ऑप्शन सी। ठीक है, पैसेज 3 में, अब यहाँ पे पैसेज क्या इम्प्लाई करता है, तो this is the most we can say broad and positive option, mature democracy use of force is irrelevant in the actual exercise of sovereignty। ऑप्शन डी। डी बोल रहे, डी, यस मानसी, ऑप्शन डी। डी बोल रहे हैं मेच्योर डेमोक्रेसी फोर्स इज नैरो डाउन। ठीक है, नैरो डाउन, यहाँ पे थोड़ा सा लगा था मेरे को एक बार। ये पूरा बोल रहा है इररेलेवेंट है फोर्स, वो बोल रहे हैं नैरो डाउन, एग्जिस्ट करती है बट बहुत कम उसमें जो उसका इम्पैक्ट होता है। ओके, पैसेज 4, तो पैसेज रिलेट्स टू ड्यूटी टू वोट होना चाहिए। ऑप्शन ए। ठीक है, पैसेज नंबर 5, तो पैसेज सीम्स टू सजेस्ट दैट डिस्पेयर इन अ कंट्री समटाइम्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप। ऑप्शन डी। ओके, पैसेज नंबर 6, वी हैव टू आइडेंटिफाई अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, तो मेरे हिसाब से ओनली टू होना चाहिए। पहला बोल रहा है पीपल ऑलवेज सी लेजर टाइम एज अ गिफ्ट, ऑलवेज का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि कुछ उसको यूज भी करते हैं, कुछ मिस यूज भी करते हैं। ऑप्शन बी। पैसेज 7 है, सो यहाँ पे भी अजम्पशंस आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें दोनों मेरे हिसाब से करेक्ट है। ऑप्शन डी। डी बोल रहा है, ठीक है, ये इसेंशियल यहाँ पे गलत हो गया। स्टडी ऑफ फेमस बैटल्स मॉडर्न वॉरफेयर कोई भी नहीं है।
डायरेक्ट बोला नहीं है वैसे पैसेज में, मॉडर्न वॉरफेयर की बात नहीं करी उसने, लीडरशिप की बात करी थी, तो इसलिए दोनों ही गलत है। फाइन। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एवरेज से रिलेटेड, तो इस केस में सम ऑफ वेट से हमें तीन जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमने लिख ली इक्वेशन फॉर्म में। हमें फिफ्थ पर्सन का वेट निकालना है, तो टोटल हमारे पास 9 पीपल है, उसमें से फर्स्ट 5 का दे रखा है एवरेज कितना है, लास्ट 5 का एवरेज दे रखा है। तो इस बेसिस पे आप इसको इसको और ब्रेक करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट 4, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं फर्स्ट 4 का वेट आ जाएगा, लास्ट 4 पर्सन का हमारे पास वेट आ जाएगा, जो 6th 7th 8th 9th पर्सन है, बीच में 5th पर्सन बचा जो हम इसको फिर ये पहली वाली इक्वेशन को एक्सपैंड करके यहाँ लिखेंगे यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, इनको यहाँ पुट करेंगे। तो फिफ्थ बस पर्सन एक वेरिएबल हमारे पास बचेगा जिसका वेट हमें एक्चुअली निकालना है, तो 50 kgs आएगा, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 29th क्वेश्चन। यहाँ पे जब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ऐसे लिख लो सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन में एंड में पूछा है बोथ कौन मतलब ऐसा कौन सा प्लेयर है जो टेनिस भी खेलता है और बैंक एम्प्लॉय भी है। तो ये कंडीशंस जो है ना, बस ये एक बार फिर से रीड कर लेना, ये यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, आप इजिली स्पॉट कर पाओगे कि इट इज निर्मला, तो सी होना चाहिए। ऑप्शन सी। देन यहाँ पे दे रखा है दो इक्वेशन है, पी दे रखा है 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी, और क्यू के लिए भी एक इक्वेशन है। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ए जो है ग्रेटर देन बी है। अब यहाँ पे ना परसेंटेज है, तो आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, वी जस्ट हैव टू इंश्योर ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए मैंने अज्यूम किया 100 है, बी 50 है। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दो दोनों की वैल्यू, 40% ऑफ ए क्या आएगा, 100 का 40% इज 40, तो 40, और 65% ऑफ 50 क्या आएगा 32.5, तो 72.5 एक वैल्यू आ गई पी की। सिमिलरली क्यू की हम निकाल लेंगे इस बेसिस पे, 50% ऑफ ए इज 50, 50% ऑफ बी आएगा 25, तो 75। तो इसमें से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्यू ग्रेटर देन पी आ रहा है। इसका ऑप्शन डी गिवन है, मेरा भी डी। बी ही ऑप्शन आया था। हाँ। ठीक है, हाँ मतलब सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं। ओके, मतलब वन ऑफ द कंडीशंस फुलफिल हो रही है, बट हर एक ऐसे सिचुएशन में नहीं होगा, तो इसलिए विल गो विद डी। डी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। 31 में दे रखा है एक वॉच है विच लूजेस 2 मिनट्स हर 24 आवर्स में, एक और सेकेंड वॉच है विच गेन्स 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर्स। तो जब दोनों स्टार्ट होती हैं तो टू वॉचेस दे शोड आइडेंटिकल टाइम, अब नेक्स्ट कितने टाइम पीरियड के बाद, कितने आवर्स के बाद वो सेम टाइम फिर से शो करेंगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही है, तो एक 2 मिनट्स गेन कर रही है, एक 2 मिनट्स लूज कर रही है। सो गैप जो है हर 24 आवर्स में 4 मिनट्स का गैप हो रहा है, 2 + 2 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स का गैप अगर वन डे में हो रहा है, तो इसका मतलब कि 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद ही वो दोनों स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि एक में गेन हो रहा है एक में लॉस हो रहा है। अब वो 24 आवर्स कितने टाइम में वो लूज करेंगे हमें वो निकालना है। तो 24 आवर्स के बाद सेम टाइम होगा, अब 24 आवर्स को मिनट्स में निकालेंगे तो मिनट्स में इट विल बी 1440 मिनट्स। सो 4 4 मिनट का गैप एक दिन में हो रहा है, तो ये गैप 1440 मिनट्स का गैप कितने दिन में खत्म होगा, तो इसलिए इसको हमने डिवाइड करिया 1440/4, क्योंकि 4 मिनट्स गैप है, 360 डेज आएगा, 360 डेज के बाद सेम टाइम होगा, इसलिए डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। हम्म 32 में इस इंफॉर्मेशन को ये जो दे रखे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, अगर आप डायरेक्ट रीड करते हो ऐसे लिखने के बाद इट बिकम्स इजियर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, इतना हमें दे रखा है, अब ये हमें नहीं गिवन है, यहाँ पे ये कैटेगरी हमें निकालनी है। सो इस केस में आप देखोगे लेस देन 30,000 की इनकम पता है, 30,000 से 1 लाख की एक कैटेगरी नेक्स्ट होगी, क्योंकि मोर देन 1 लाख दे रखा है, फिर मोर देन 2 लाख दे रखा है। अब हमें इसका निकालना है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में भी तो कुछ नंबर ऑफ हाउस होल्ड होंगे फिक्स्ड, जो 1 से ज्यादा अर्न करेंगे बट 2 लाख से कम अर्न करेंगे। तो उसके लिए आप सिंपली 22% माइनस 6% करोगे तो 16% आपके पास आएगा, क्योंकि मोर देन 1 लाख में 2 लाख वाले भी काउंटेड है इस 22% में। सो इसलिए 16% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। और 990 ये नंबर हमें दे रखा है, अब ये 66% हमें ये भी हमने निकाला है कैसे, क्योंकि आप अब प्लस करोगे, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, यहाँ परसेंटेज नहीं है, ये कैटेगरी कैंसिल हो गई, क्योंकि मोर देन 1 लाख है, अब हमारे पास 1 से 2 के बीच के आगे मोर देन 2 आ गई, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो 12
plus 16 plus 6% will give you 34% आएगा। तो 3400 माइनस 34% विल बी 66%, जो ए की कैटेगरी बचेगी। तो अगर 66% 990 हाउस होल्ड है तो हमें 16% निकालना है। तो यूनिटरी मेथड से आप करोगे तो 240 हाउस होल्ड वुड बी देयर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 33, तो क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, मतलब 1 o'clock जब होता है तो एक बार वो स्ट्राइक करती है या कोई ऐसी साउंड निकालती है। 2 o'clock होता है तो वो साउंड 2 बार आती है। 3 o'clock पे 3 टाइम आती है। तो लाइकवाइज ऐसे ये पैटर्न फॉलो होता है। अब 5 o'clock पे जब क्लॉक स्ट्राइक करती है 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स को स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकेंड्स लगते हैं। तो पूछा है कि 10 o'clock पे कितना टाइम लगेगा जब क्लॉक वो साउंड को 10 टाइम्स रिपीट करेगी। तो अगर 5 टाइम्स में 12 सेकेंड्स लग रहे हैं तो हमें 10 टाइम्स निकालना है 10 o'clock पे, क्योंकि 10 टाइम्स वो साउंड रिपीट होगी। तो यूनिटरी मेथड फॉलो करोगे तो 24 सेकेंड्स इट विल टेक। ऑप्शन बी। ओके। अब स्टेटमेंट है मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दो कंक्लूजन ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब ये ऑल बोल रहा है तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। सेकेंड है मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अब यहाँ पे इसेंशियल भी बोल दिया तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ऑप्शन डी। डी की बी? डी। डी ना, ओके neither one nor two, this one. ठीक है। 35th, देर आर 13 2 डिजिट कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड नंबर्स है। तो 39 अगर मीन है फर्स्ट 5 नंबर्स का, मीन क्या होता है बीच वाला नंबर। तो 39 अगर यहाँ मीन है तो मतलब पहले 5, बस इतना अगर हम इसको निकालेंगे तो 39 हमें बीच का नंबर पता लग गया, मीन है। अब 2 नंबर इस साइड है 2 नंबर इस साइड है, क्योंकि 5 नंबर का ही हमें दे रखा है, ये मीन है। तो ऑड नंबर हमें निकालने हैं और वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तो यही ऑड नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है। अब हमें सारे 13 नंबर्स का मीन निकालना है, तो इसका मतलब जो 7th नंबर होगा वो मीन होगा। इस साइड भी 6 नंबर होने चाहिए, इस साइड भी 6 नंबर होनी चाहिए। अब ये कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं हमको, क्योंकि हमें बस 7th नंबर पता लगाना है जो कि मीन है। अब हमें फर्स्ट 5 तो पता लग ही गए हैं, 2 नंबर और आगे क्या होंगे ऑड नंबर, 43 के बाद 45 फिर 47। 47 वुड बी द मीन। ऑप्शन ए। ठीक है। 36 में 6 बॉयज हैं, दे प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स। पहले हर इंडिविजुअल के पास 10 10 कार्ड्स हैं, ये गिवन है। अब ये पूरा जो स्टेप्स है ये फॉलो करते जाओ। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट किसके पास कितने कार्ड्स बचेंगे। तो एफ अगर बोरो करता है 2 कार्ड्स फ्रॉम ए, तो ए के पास 10 थे, अब 2 जब ए दे देता है एफ को तो 8 बचे। एफ के पास 10 थे, एफ के पास अब 12 हो गए। अब एफ आगे 5 कार्ड्स दे देता है। तो ये पूरा आप ऐसे करते जाओगे, यू विल सी कि कितने कार्ड्स किसके पास बचे। एंड में बोल रहा है देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पोजेस्ड बाय डी एंड ई, दोनों का मिला के कितने कार्ड्स है 15 और 11, तो 26 है दोनों के पास। इनमें से कौन से ऑप्शन किन के पास वो सेम 26 नंबर ऑफ कार्ड्स है। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट ये नंबर डाल के, क्योंकि नंबर यहाँ हमने ऑलवेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। तो बी सी और एफ को प्लस करोगे, ये प्लस करोगे तो 26 ही आएगा। ऑप्शन बी। देन 37, अब यहाँ पे मिल्क सैंपल है, 50% उसमें वाटर है। और 1/3 अगर उसी सैंपल का 1/3 जिसमें 50% मिल्क है 50% वाटर है, उसी का वो ऐड करता है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क में। मतलब जो 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसी का इक्वल अमाउंट ऐड करते प्योर मिल्क में। तो इसलिए हम यहाँ कुछ भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1/3 किसी भी उसका, बस हमें यहाँ पे 1/3 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 100 ml जो कि 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे टोटल जितना भी क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, जो हमें आगे यूज करना भी नहीं। तो 50% इसमें मिल्क है, 50% वाटर है, ये हमें दे रखा है। प्योर मिल्क उतना ही इक्वल अमाउंट है, तो इक्वल अमाउंट मतलब 100 ml। तो 100 ml और प्योर मिल्क आएगा तो टोटल हो गया 200 ml, 100 + 100। अब इसमें पूछा है जो 200 ml है इसमें 50 ml वाटर है, ये कितना परसेंटेज है 200 ml वाले मिक्सचर में। तो परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, 50 ml वाटर 50/200 टोटल है, इंटू 100 टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो 25% आएगा। ऑप्शन ए। यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स निकालने हैं। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 वर्टिकल है,
दे आर पैरेलल और ये इक्वल आएंगी, तो ये स्क्वायर है शेप में, अभी हमें रेक्टेंगल दिख रहा है बट ये इक्वल है फोर, मतलब फोर साइड से, तो ये स्क्वायर है। वैसे ये पूरा भी स्क्वायर आएगा तो आप कैलकुलेट करोगे, मैं 36 तक तो कैलकुलेट कर पाई हूँ। ऑप्शन सी। ठीक है। 39 में फ्री ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई जाती है, स्पीड दे रखी है तो ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 2 घंटे के बाद चलती है, 2 घंटे के बाद उसकी स्पीड, मतलब वो जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। 2 घंटे में आप निकाल लो वो 120 किलोमीटर चलेगी, और ये 2 घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर। तो पूछा है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्री ट्रेन। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्योंकि हमें निकालनी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए हम सबट्रैक्ट करेंगे स्पीड को टू गेट द रिलेटिव स्पीड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की स्पीड्स को हम ऐड करते, तो ये चीज माइंड में रखनी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे 80 किलोमीटर डिस्टेंस उसको एक्सप्रेस ट्रेन को कवर करना है। टाइम वही है 2 घंटा, तो टाइम हमें निकालना है अब कितने टाइम में दोनों मीट करेंगे। सो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यूज की जाएगी और 80 किलोमीटर डिस्टेंस यूज किया जाएगा, जो पहले वाली ट्रेन जो फ्री ट्रेन है वो कवर कर चुकी है। सो उसको कवर करने में 4 आवर्स लगेंगे। एंड 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, कितने के बाद दोनों को वो मतलब कैच कर पाएगी फ्री ट्रेन। फ्री ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन कितने में कैच कर रही है, तो 240 किलोमीटर होगा, क्योंकि 2 घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन कवर कर रही है 120, तो 4 घंटे में 240 आएगा। ऑप्शन सी। हम्म। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। तो यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसमें रणधीर के मार्क्स जो हैं वो हमने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ऐसे लिख ली, हमें निकालना है हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किया है। तो थोड़ा बहुत तो आप यहाँ पे जैसे अगर देखते हो रणधीर के ज्यादा है फ्रॉम कुणाल और देबू, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम मान सकते हैं कुणाल का और देबू का स्कोर लेस है देन रणधीर। अब यहाँ कुणाल और शंकर का कंबाइंड इज मोर देन रणधीर, तो हम ये बोल सकते हैं कुणाल यहाँ पे भी है, कुणाल यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स शंकर का जो स्कोर है वो ज्यादा हो सकता है रणधीर से और लेस भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है हमको। अब सोनल का जो है वो ज्यादा है देन दी शंकर, और नेहा का ज्यादा है देन रणधीर। बट यहाँ पे हम पूरा कंक्लूड नहीं कर पाएंगे विद सर्टेनिटी कि किसका हाईएस्ट स्कोर है, तो डी होना चाहिए। ऑप्शन डी। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन Ansarkari, and we'll take up the next set of 40 questions on next Sunday from again 2017 CSAT paper. We'll complete this, and thank you for joining with us.